A very warm welcome to all my lovely students, those who are looking this video lecture of class 12th chapter surface chemistry. My dear students, as we have discussed in the previous topics about the classification of colloids, बच्चों, now we are going to start today's topic. That one is related to the preparation of colloids. बच्चों, the colloids, you are all knowing that what is the colloids in the previous classes, in the previous video lectures which we have discussed about these topics. So how can we prepare the colloids? These the different methods of the preparation of the colloids which we have to discuss today. So let's start the today's topic with this first heading. Please note it down. The first heading of the today's video lecture, that one is the general methods of preparation of colloids. बच्चों, how can we prepare the colloids? As you are knowing, everyone, that the colloids which are of two types. Number one, lyophilic colloids, and number second one is known as the lyophobic colloids. बच्चों, lyophylic colloids, these colloids, they having a great affinity in between the dispersed phase and the dispersion medium. Okay, both of them, they support to each other. Just simply we mix the dispersed phase into the dispersion medium, then the lyophilic colloid, okay, LYO, lyophilic colloids. So just simply by mixing this dispersed phase with the dispersion medium, the lyophilic colloids can be formed simply. So there is no any something different or special type of the methods for preparation of the lyophilic colloids, right? Just simply we can add the dispersed phase into the dispersion medium. For example, starch, gel, egg albumin, cellulose, just cellulose or just starch we can mix within the water, then the lyophilic colloid can be prepared. Okay, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने कुछ अमाउंट में वाटर लिया, समथिंग एक्सेस अमाउंट, और इसके अंदर हमने स्टार्च को मिला दिया. ओके, हमने स्टार्च को यहाँ पर मिला दिया और सिंपल इसको ग्लास रॉड से स्टीयर कर दिया. दिस colloid will prepare. Okay, so there is no any special method for preparation of the lyophilic colloid. But बच्चों, for the preparation of the lyophobic colloids, as you are also knowing that the lyophobic colloids are those colloids in between the dispersed phase and the dispersion medium. They don't have any kind of the affinity in between them. Even वो क्या एक दूसरे को के साथ में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं. इस कंडीशन पर लायोफोबिक कोलोइड्स को बनाने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं. क्या क्या ये मेथड्स हैं?
कैसे हम लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लायोफोबिक colloids, these which we have to discuss over here. Okay, now we are moving ahead towards the preparation of lyophobic colloids. Please note down this heading for preparation of lyophobic colloids. Preparation of lyophobic colloids. ओके बच्चों, lyophobic colloids can be prepared by two general methods. So lyophobic colloids can be prepared by two methods. Number one, the method name is by the condensation method, by the condensation method, and number second type of the method, which one is known as the by dispersion method. ओके बच्चों, इस दो तरह के मेथड्स से हम लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. राइट, कंडेंसेशन मीन टू से व्हाट? कंडेंसेशन का मतलब हो गया यहां पर इकट्ठा होना. ठीक, तो इस वाले मेथड में जो हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स बनेंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस में कंडेंस्ड होने पर बनेंगे. अभी ये कैसे कैसे किस तरीके से बनेंगे, इनके क्या क्या और भी मेथड्स हैं. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स, सब मेथड्स ऑफ द कंडेंसेशन मेथड्स आल्सो. इसका भी सब डिवीजन है. एंड द सेकंड वन इज द डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन का मीनिंग मतलब डिस्पर्जन मीन टू से बिखर जाना, हटना. मीन टू से एक जगह पर अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, उसके पार्टिकल्स इधर उधर हटेंगे. ओके, किस तरीके से है, कैसे इसको हम डायग्राम के थ्रू अभी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो प्लीज नोट इट डाउन दैट द लायोफोबिक कोलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द टू जनरल मेथड. नंबर वन इज बाय द कंडेंसेशन मेथड्स and number second is by the dispersion methods. Now we will discuss the first point by the condensation methods. बच्चों, जैसा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कंडेंसेशन मेथड में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं. छोटे छोटे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम में मिलाए जाते हैं और ये पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होकर के एक कोलॉइडल शेप लेते हैं, एक कोलॉइडल साइज फॉर्म करते हैं, तब जाकर के कोलॉइड का सॉल्व बनता है. इनके भी डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे फर्स्ट वन, सो इन द कंडेंसेशन मेथड द फर्स्ट मेथड इज द केमिकल reaction method. Chemical reaction method. As its name you are looking over here, that the mean to say the colloids which are forming with the help of the reaction. Okay, so different types of the reactions which are involved for the preparation of the lyophobic colloid. Now what are these type of the reactions, this which we have to discuss over here? The first one reaction is the oxidation reaction. Okay, oxidation reaction. I think everybody you are knowing about the oxidation reaction also. Just simple, आप रिकॉल भी कर सकते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन जनरल. कुछ और भी चीजें हैं बट यहाँ पर हम ये भी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट.
In the oxidation methods, what are the different types of the reactions? So just simple, इवन ऐसे तो बहुत ढेर सारी रिएक्शंस है, बट यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ये मेथड समझ में आ जाए। जैसे एक मेथड, सिंपल मेथड होता है बाय पासिंग द, इसी ऑक्सीडेशन मेथड के इंटरनल, बाय पासिंग द H2S gas, okay, by passing the H2S gas in bromine water, okay, in bromine water or sulfur dioxide gas or nitric acid for example, etc. इनके अंदर H2S गैस को फ्लो कराया जाता है। ये एज अ डिस्पर्जन मीडियम आप कह सकते हो। इनके अंदर H2S गैस को प्रोवाइड कराया जाता है और H2S गैस के साथ में इन सब्सटेंसेस का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्ट बनता है, जो कोलॉइड बनता है, दैट कोलॉइड विल नोन एज द लायोफोबिक कोलॉइड, और फिर उसका लायोफोबिक कोलॉइड का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शंस क्या है ये भी जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, ब्रोमीन के साथ में द रिएक्शन विद द ब्रोमीन, ओके, first one, the reaction of the H2S with bromine water, okay, this one is the bromine water. Now these two substances which they do the reaction in between them, and then they will make a kind of the product will known as the HBr, and the sulfur will reduce. Now what will happen? यहाँ पर क्या होगा, H2S और ब्रोमीन वाटर आपस में मिलकर के HBr और सल्फर बनाएंगे। रिएक्शन को हम यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हैं, दो यहाँ है, दो यहाँ है। Now we can put 2 over here. Now this sulfur will make a kind of the salt. अब इस डिस्पर्स्ड मीडियम में ये जो हमारा सल्फर होगा, this will act as like as the dispersed phase, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, नॉट द नेक्स्ट वन, अगर H2S गैस को, if we will pass this H2S gas in the SO2, sulfur dioxide, now what will happen? It will form H2O, okay, H2O plus sulfur. Now again this sulfur will form a type of the colloid. हम अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का यूज कर सकते हैं। Now the reaction is balanced reaction. Third type, as I told to you, the HNO3. So the H2S gas which can pass into the HNO3, nitric acid solution. So this H2S will pass then the HNO3. What will happen? It will form the H2O plus NO2 and sulfur. So water reaction को अगर हम बैलेंस करेंगे, then it will form the 2. Then after 2 we will make over here. Then after 2 we will make over here. Now I think नहीं, यहाँ 2 नहीं जाएगा, बल्कि 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा। ओके, so 2H and this 2 total it will be the 4. 1 sulfur, then after 3 2 ja 6 oxygen, 2 4 ja and this one 2 2 ja 4 and 2. अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन है। So while the oxidation we can prepare the colloidal solution. अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा,
रिडक्शन के केस में बाय रिडक्शन there is a reaction in between the AuCl3 plus SnCl2 will form, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी and it will form SnCl4 plus Au को मीन से गोल्ड को ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा एंड द सोल्यूशन विल फॉर्म द गोल्ड सोल्यूशन। रिएक्शन को बैलेंस आप कर लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन दिस वन पोर्शन इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन एंड दिस वन पोर्शन इज रिलेटेड टू द रिडक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मेथड in the condensation that is known as the hydrolysis. Okay बच्चों, number next is the hydrolysis. Related to the hydrolysis, what will happen now, this reaction which you can also note it down. In the hydrolysis FeCl3 प्लस दिस FeCl3 का रिएक्शन कराया जाता है वाटर के साथ में, हॉट वाटर बेसिकली। ओके, दिस विच विल बी द हॉट वाटर, और इस हॉट वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके FeCl3 का हम मिलाते जाते हैं। यहां पर इसको कैसे, ड्रॉप वाइज। ओके, drop by mixing. Now what will it will form? It will form the FeOH to the whole thrice plus HCl. इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, इन दोनों के रिएक्शन होने पर FeOH to the whole thrice plus HCl, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस फिर से आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो बैलेंस क्या हो जाएगा, this will be the 3 to the 6, then we will make a 3 over here and then after 3 we will put a 3 over here. मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो गई है, आप देख लीजिएगा, राइट। सो बाय द हाइड्रोलिसिस we can prepare the colloidal solution. Okay बच्चों, next method is the by exchanging of solvent। नाम से ही पता चल रहा है हमें, by exchanging of solvent मीन तो से डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को अगर हम चेंज कर दें, अब डिस्पर्जन मीडियम को हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक डिस्पर्जन मीडियम में, एक लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। इस केस में भी हम कुछ यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस, द सल्फर एंड फॉस्फोरस कैन नॉट डिसॉल्व इन द सिंपल वाटर, वेयर एज द सल्फर कैन डिसॉल्व इन द एल्कोहल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सल्फर को अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, और फिर उसके सॉल्यूशन को हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। अब जब एक्सेस अमाउंट में वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, जैसे ये डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर अल्कोहल लिया, अल्कोहल प्लस सल्फर। अब इस अल्कोहल और सल्फर को हमने यहां पर मिक्स किया, जो कुछ भी इसका सॉल्यूशन बना ये इसके अंदर मिक्स हो गया। नाउ दिस सॉल्यूशन इट विल पोर इनटू द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहां पर हमने एक्सेस अमाउंट में वाटर ले लिया, और इस एक्सेस अमाउंट वाटर में जब हमने इसको पोर कर दिया, अब आप जब यहां पर देखेंगे देन यू विल सी दैट देयर विल बी अ काइंड ऑफ द कोलोइड्स। ओके बच्चों, so this one, now the next one method is the
by excess cooling. Next method is by excess cooling. अब इस excess cooling में क्या होगा? In the excess cooling, एक्स्ट्रा हम इन्हें क्या करते हैं? कूल करते हैं। जैसे ईथर है, अल्कोहल है और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम जब सिंपली कुछ डिस्पोज्ड फेज को ऐड करते हैं तो उसके एडिशन होने के बाद वो सिंपली हमें एसिड सॉल्यूशन की तरह दिखता है। बट अगर हम उसको कूल करने के लिए रख दें, फ्रीजर में रख दें, डीप फ्रीज करें, देन आफ्टर वी विल सी that there will be a type of the coagulation formation. The dispersed phase particle will form a type of the colloidal formation, and with the help of this we can prepare the lyophobic colloid. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अभी इतना। इस मेथड से हम कैसे लायोफोबिक कोलोइड्स को कंडेंसेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज द डिस्पर्जन मेथड्स। एज आई टोल्ड टू यू ऑल्सो दैट इन द डिस्पर्जन मेथड second one method is the dispersion method. Okay बच्चों, dispersion method as I told to you कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर होते हैं। उस एक जगह यानी कि थोड़ा बड़े साइज के एक जगह का हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स काफी बड़े साइज में होते हैं और बड़े यानी कि आप इन्हें कह सकते हो कि सस्पेंशन टाइप के होते हैं। ओके, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इन सस्पेंशन टाइप के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मेथड्स के थ्रू हम छोटे छोटे करते हैं, इन्हें ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करके फिर इन्हें कोलोइडल फॉर्मेशन में दिया जाता है। इसके लिए कुछ मेथड्स मशीन से इस्तेमाल होती है। इस मेथड को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड। ओके बच्चों, इस मैकेनिकल मेथड में क्या है कि मैकेनिकल मेथड में एक मशीन होती है। उस मशीन में ऊपर से सस्पेंशन पार्टिकल को डाल दिया जाता है और सस्पेंशन पार्टिकल्स ऊपर से पूरे सॉल्यूशन के साथ में जाते हैं। फिर अंदर एक मशीन लगी होती है ग्राइंडिंग टाइप में। तो जो पार्टिकल्स बड़े बड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके जो मशीन के रोलर्स होते हैं वो रोलर्स उन्हें छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ते जाते हैं जिससे कि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन मेथड इन द डिस्पर्जन मेथड इज द एंड दिस मेथड इज आल्सो द इंपॉर्टेंट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज द ब्रिग-डी मेथड्स। ब्रिग-डिक्स method. Okay, now what is this Briggs-D methods? Briggs-Dix methods को क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड्स भी बोल सकते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड्स। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। इसमें क्या है, इन दिस मेथड ऑल्सो देयर इज अ काइंड ऑफ द मशीन। बेसिकली इसमें क्या है कि
जो आपके बड़े पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स के पार्टिकल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इनके बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक डायग्राम यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इस डायग्राम की हेल्प से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देयर इज द टू टाइप ऑफ द केसेस। यहां पर इस जगह पर कूलिंग सब्सटेंस रखा जाता है। कूलिंग सब्सटेंस फॉर एग्जांपल आइस, ठीक है, दिस वन इज द आइस। इस के अंदर ये जो पॉट है, इस पॉट के अंदर जस्ट अ सिंपल वाटर, ओके, यहां पर वाटर रखा गया। अब इस वाटर में यहां पर दो तरह की इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, एंड दैट इलेक्ट्रोड्स विल बी ऑफ द मेटल्स। नाउ दीज टू इलेक्ट्रोड्स मे बी ऑफ द गोल्ड और सिल्वर। सपोज फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, प्लेटिनम की भी हो सकती है, एक्सेट्रा। इन इलेक्ट्रोड्स को हाई इंटेंशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल पास ओवर हियर, then there will be a kind of the spark formation in between these two electrodes. Okay, इनके बीच में एक स्पार्किंग होती है, और इस स्पार्किंग की वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के यानी कि मेटल के, वो अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वेपराइज कंडीशन में आते हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इनके पार्टिकल्स क्या अलग हो जाते हैं, और ये अलग होकर के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं इन द वेपराइजेशन फॉर्म। But since the ice material, mean to say cooling material which kept over there, so due to this reason, this water will be at the very low temperature, and suddenly these particles, these gold particles which have been vaporized, again they will cool, और वो फिर क्या होते हैं, वो solid formation में यहाँ पर इधर उधर ऐसे घूमने लगते हैं। So there is the formation of the colloid also. ठीक है बच्चों, तो ये एक मेथड हो गया, and this method is also known as the Briggs method. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसे आप सब अच्छे से नोट्स बना करके भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन मेथड इज द पेप्टाइजेशन मेथड। The third method with this, in the faculty of the dispersion, that one is known as the peptidation. Peptidation method. Now, what is the peptidation method? This is also a very important question. एक नंबर के लिए 1 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, दैट व्हाट इज पेप्टाइजेशन। ये एक कॉमन फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिफाइन द पेप्टाइजेशन, व्हाट इज द पेप्टाइजेशन। सो पेप्टाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस, ओके बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate forms, okay, the freshly prepared precipitate in the form of the colloidal solution by addition of a small amount of the or suitable amount of the electrolyte in it. कोई भी एक freshly prepared, एक यहां पर बनाते हैं, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, सपोज फॉर एग्जांपल FeCl3 का, ठीक है, यहां पर ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है,
फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में ऊपर से कुछ न कुछ सुटेबल अमाउंट में क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालने पर इनके बीच में जब इलेक्ट्रोलाइट इसमें जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स, एज यू आर नोइंग दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर हैविंग द चार्जेस इन बिटवीन देम, मीन टू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ के जो प्रेसिपिटेट होते हैं उन प्रेसिपिटेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बना जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट पूरा इधर उधर मिक्स हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, एज विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्पर्सन मेथड्स आल्सो। तो सारा प्रेसिपिटेट यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आने की वजह से ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द डिस्पर्सन मेथड। एंड दिस प्रोसेस, the process of just dispersing the precipitate by addition of the electrolyte, the suitable electrolyte is known as the peptidization method. And the electrolyte, this electrolyte, the suitable electrolyte which we add in the method of the peptidization is known as the peptidizing agent. ओके बच्चों, इनको पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। ओके, सो यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, सो पेप्टाइजिंग एजेंट को भी हम यहां पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस व्हिच वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ द पेप्टाइजेशन दैट इज नोन एज द पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, सो यहां तक इतना आपके कोर्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द लायोफोबिक, बेसिकली लायोफोबिक कोलॉइड्स को आपके कोर्स में यहां पर दिया गया है। थोड़ा सा समअप कर लेते हैं दैट द लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक तो खैर आसानी से मिल जाएंगे। लायोफोबिक कोलॉइड्स, सिंपली लायोफोबिक कोलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द टू मेथड्स, number 1 कंडेंसेशन मेथड एंड नंबर 2 डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, देन बाय कूलिंग मेथड्स, बाय एक्सचेंजिंग द सॉल्वेंट, ऐसे करके। नेक्स्ट वन मेथड इज द डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड्स में भी मैंने आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए, जैसे फर्स्ट मेथड इज द मैकेनिकल मेथड, ओके, जिसमें सस्पेंशन पार्टिकल को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में मशीन के थ्रू अलग करके कोलॉइडल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड वन मेथड, दैट वन इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल मेथड, राइट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिगडीज मेथड, राइट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके और फिर सब्सटेंसेस को कूल किया जाता है विद द आइस। एंड थर्ड टाइप ऑफ द मेथड इज द पेप्टाइजेशन मेथड। ओके बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को आप सब अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए एंड यू प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।